Everyone, am I audible? Yes, sir. Good afternoon. Hmm. मुझे लगा मैम आज क्लास नहीं होगा। आपने एवरीडे सुबह सुबह भेज देती है लिंक्स ना, तो मुझे लगा लिंक्स नहीं हुआ है, तो आई थॉट कि क्लास नहीं होगा। मैम स्टार्ट यहां से करना है क्या? Yes, sir. अच्छा, ठीक है। डिमांड फोरकास्टिंग, ओके। मैम आवाज आ रही है? कुछ कट रहा है लग रहा है। हेलो। Yes, sir. You're audible. बट माय वॉइस इज गेटिंग इकोड एवरी टाइम, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। It was getting echoed, but now, sir, it's fine. Okay, let us start. So whenever you feel that there is a problem in while listening, you just inform me, okay? I will stop there. Yes, sir. So, uh, demand forecasting. What does it mean? From the name itself, we can identify that it is a process of predicting future customer demand. For what? For product and services. Okay. Uh, See how it works. If I ask you, you may going to have a perception in your mind that, sir, how it will work? How can we predict the future customer demand? There is a theory in that. Understood that particular theory. There is one type of data. Every, what you can say, big shopping malls. Okay, the big shopping malls, they used to keep. That is the, you call it as an historical data. Whenever you, after purchasing anything from the mall, when your purchasing part is over, now you want to leave the mall. After submitting your whatever the required amounts for your purchasing that you have purchased, they ask you, the accountant or the receptions or somebody else, they will going to ask you the phone number, and after that they will going to analyze and identify the patterns and trends over time. So whenever the accountant, they start counting your articles that you have purchased from the mall, they identify the patterns that what type of products you are going to purchase for the next. They analyze it. Okay, they analyze it and they identify and they try to find out the patterns that you are having. जैसे, अब हिंदी में थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे आप अगर कुछ फेसबुक में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में कुछ भी, या यूट्यूब में आप कुछ भी वीडियोस जब देखते हो, आप अगर 1 मिनट और फॉर अ फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकेंड्स आप अगर स्टॉप करके वो रील्स को आप देखते हो, तो क्या होता है, नेक्स्ट जब आप स्क्रॉल अप करते हो या स्क्रॉल डाउन करते हो, तो सेम पैटर्न्स आपको देखने को मिलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस तरह से कोड किया है कि कोई भी लिसनर्स हो या व्यूअर्स हो या कस्टमर्स हो, किसी भी चीज को देखने, परखने या खरीदने में अगर थोड़ा सा भी वक्त लगाए, इस मीन्स यू जस्ट फाइंड आउट, यू जस्ट make a mark that he or she is going to look for such product in
past also, है ना? हम कुछ ऐसे चीजों की खरीदारी जब करते हैं तो ऐसे ही दुकान से खरीदते हैं जहां पर वो सामान मिलता है। पहले सिचुएशंस ऐसा नहीं था। अगर एक दुकान में नहीं मिलता है तो हम फिर दूसरी दुकान चले जाते हैं वही सामान खरीदने के लिए। हमें पता है कि यहाँ ये सामान मिलता है। तो जो शॉप ओनर है, किराने दुकान का जो शॉप ओनर है, उसे ये पैटर्न पता चल जाता है कि मेरा मैक्सिमम कस्टमर्स जो आता है मेरी दुकान से ये सामान खरीदने के लिए ही आता है। For example, I can give you one more example so it might be clear to you. There is a food product, dry milk product called Ensure. If you if you want to purchase Ensure dry milk product of vanilla flavor of 200 grams, then it is very difficult for you to find out in all over areas in Jamshedpur. It's very, very difficult because you are going to get the chocolate pattern, you are going to get tutti fruit flavor. But if you want to find it out, the vanilla flavor, that's also of 200-gram dry milk product. It's very difficult to find it on, especially in Jamshedpur market. But you can purchase from online. But my point is that how the customers being analyzed through their data by the shop owner. For this, I am going to give you the example, relevant example of it. But some shop owners are there, yeah, shopkeepers are there. They know there is a demand of this 200-gram dry milk product Ensure of vanilla flavor. So the customers can only find it out that respectable or that particular area only. Particular area, particular location, particular shop. You are free, you have your guts feeling that if I go there and purchase, if I go there and bargain for this particular product, definitely I'm going to get that. And the shop owner also know that yes, these are my customers, they are coming here for this particular product, and that is why they always order for their product before it over. Okay, this is the type they used to analyze through the historical data and the past sales ideas to identify the pattern and trends over the time. This way, the first way, this is the way they work, demand forecasting. Another one is the variable factors. What are the variable factors? If my demand is increasing, if my price is falling of any good, whether the demand is getting affected or not. What is the seasonality of the market demand? What is the marketing campaign of this particular product? What is the exact factor of this particular product? Whether it is available in the marketing or not. These are some considerable variables through which a shop owner or through a businessman can identify the pattern of any customer for its purchasing. Depending on that, they can forecast or they can predict the demand of a customer. Okay, they can identify the demand of a customer. और इससे फायदा क्या होता है जानते हो? बेटर फूड सप्लाई चेन बढ़ जाता है, बढ़िया, आप बजटिंग अच्छा कर सकते हो, आपका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? जैसे मैंने वो जो फूड प्रोडक्ट का आपको एग्जांपल दिया कि इफ यू आर गोइंग टू परचेज द वैनिला फ्लेवर एसेंस ऑफ 200 ग्राम dry milk product, you will hardly going to get in the Jamshedpur. Only 2 or 3 shop owners are there. I can count it. Only 2 to 3, 4 shop owners are there who kept all these products. Okay. So if you go there, you can purchase it. अब कभी कभी दुकानदार इस चीज का फायदा भी उठाते हैं। कैसे? वो थोड़ा सा मार्जिन्स या थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड और कर देते हैं और बता देते हैं कि सर आपको तो पता है ये चीज दुकान में बहुत सारे दुकान में मिलती नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा सा दाम बढ़ गया है। ठीक है, तो आप उसमें से मैनिपुलेट करके, एक्सप्लॉइट करके कस्टमर से प्रॉफिट इनकम कर सकते हो। ये भी एक क्वालिटेटिव टेक्निक मेथड है या क्वांटिटेटिव टेक्निक मेथड है, जहां पर आप
फ्यूचर प्रेडिक्शंस के माध्यम से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो. एम आई क्लियर? दिस इज कॉल्ड डिमांड फोरकास्टिंग. समझ में आया? इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. The next example, ma'am, please go to the next slide. मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग. जो मैंने मेथड्स अभी दो एग्जांपल्स दिया वो यहीं पर लिखा हुआ है. ठीक है, द सेम चीज, एनालाइजिंग द डेटा, कंसिडर द वेरिएबल्स. Another important methods are technique of analyzing the past future, that is qualitative method, and another one is quantitative method, and the third one is decision making. These are the three more important data irrelevant to this number one and number two: qualitative method, quantitative method, and decision making. Now, what is the qualitative method? Experts giving their opinions on market research or about the future demands. What is quantitative? Some mathematical calculations, statistical models are there, some data are there, some casual models are there, some projections are there, through which they can find out the pattern of the trends that going over the time. Okay. Now, what are the benefits of this forecasting? This will going to improve the supply efficiency, right amount for the right product, and availability of the product at the right time. This will going to help the efficiency of the supply. Another one, inventory management. What is the inventory management? For example, inventories are such as capital, excess storage, excess productions. This in one word, this group in one word, we call it as an inventory management. Okay. Another one is your assumption of wealth, that also be counted, assumption of capitals, that also be counted under inventory management. You can prevent, through this demand forecasting, you can prevent the excessive storage problems, excessive wastage of capitals, unnecessary. You can stop unnecessary exploitations that going on in the market. You can also try to stop this unnecessary wastages that happens, okay, through your future forecastings. Apart from that, you can reduce the production cost also, okay, through you can avoid the overproductions, and through because of this overproductions sometimes it lead to a waste, that to total waste. So through this proper analyzing and calculative of demand forecasting, you can reduce the production cost also. Okay. And another important part is your satisfaction from the customers, that will going to means that will be as in rewards to the business owners, to the industrialists, to the factory owners who are accord with the production house. They are always been happy, because after all, customers are my god. They are all my wealth. They are all my asset. If my customers are all satisfied, then my frustration due to stock out can be reduced to some extent. Okay, some businessman or some production house, the frustration, they are sometimes on a stage of a frustrations. Why? They think, or they thought, or they have sometimes the problem that my stocks are not going out. My pipelines are full. My stocks are not properly circulated in the market, or not properly distributed in the market. So what will happen? I have to see my loss. Okay, and that loss is also crores and crores of rupees. So you can reduce the production cost, and through this you can increase the satisfaction of the customer. And apart from that, through this demand forecasting, you can make your better financial planning, more accurate, more revenue, more cash flow. You can have a better financial plans. So these are some benefits of demand forecasting. Understood? Any doubt? No, sir.
ओके मैम, नेक्स्ट स्लाइड। यही सब है, हाँ, मेथड्स में जो मैंने बताया आपको, यही सब है। अपार्ट फ्रॉम दिस और कुछ भी है, जैसे सर्वे मेथड हो गया, स्टैटिस्टिकल मेथड हो गया। स्टैटिस्टिकल मतलब हो गया मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, एंड अपार्ट फ्रॉम अदर मेथड में हो गया एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, टेस्ट मार्केटिंग, एसिड टेस्ट जिसे हम कहते हैं, दैट इज। उसके बाद कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स। ओके, जो भी एक्सपेरिमेंट हम कंटिन्यूअसली फ्लॉलेसली हम नहीं कर सकते, कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो है हम कंट्रोल करके उस एक्सपेरिमेंट्स को करना चाहते हैं। जजमेंट्स, जजमेंट लेना, जजमेंट देना किसी भी टॉपिक पर, दैट इज अ मोस्ट चैलेंजिंग थिंग, एंड दैट टू ऑन मार्केटिंग, जहां पर मार्केटिंग का पोजीशन हमेशा अनइवन रहता है। आप कभी भी एक्यूरेटली फोरकास्ट नहीं कर सकते हो कि कैसा हो सकता है। ऑल आर इन assumption एंड प्री assumption, इसके बेसिस में आप एनालाइज कर सकते हो। तो सर्वे मेथड्स क्या है? इंटेंशन ऑफ द बायर्स, यू नो इंटेंशन ऑफ द बायर्स। सेंसस मेथड एक है, दूसरा है सैंपल मेथड। दो मेथड है थ्रू विच यू कैन, थ्रू योर सर्वे you can find out what customers like, what customers dislike. Next is statistical method, observations, then comes your analysis, then comes your exponential strategies. These are done through statistical method. मेरा ग्राफिकल शायद आप नहीं थे, योर एब्सेंट। अगर वो वीडियो मैंने शेयर किया है तो आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव, कल बहुत सारा कैलकुलेशंस था, आप उसको थोड़ा सा रीड आउट कीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो आपको फायदा रहेगा कि कैसा कैलकुलेशंस किया जाता है। ठीक है? Yes, sir, I've seen that. हाँ, तो you can go through that, you can find it out the calculations. The most important part is the statistical graph which has been there. कैसे ग्राफ का कट पोजीशंस में कहाँ इंक्रीज हो रहा है, कहाँ डिक्रीज हो रहा है। Through this statistical method we can identify the demand forecasting, और अदर मेथड तो मैंने बता दिया। These are the some methods. Next. Okay, so here we comes to the end of unit 1 of managerial economics, demand forecasting. Now let's come to the next is theory of production and cost concept. बहुत बड़ा चैप्टर है, theory of productions और cost concept। ये इसलिए जरूरी है कि प्रोडक्शन का थ्योरीज क्या होना चाहिए, उसका एसोसिएटेड कॉस्ट क्या होना चाहिए, लेबर कैपिटल्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको कैसे हम ट्रांसफर करके गुड्स एंड सर्विसेज में प्रोडक्शंस को जोड़ सकते हैं, एसोसिएट को कैसे मैनेज कर सकते हैं टू अर्न maximum profit of this. This all are comes under the production function. Okay, let us understand what is the theory of production. This is the combine of labor and capital to create good and services in the production. This is called theory of productions. Means your inputs are capital एंड लेबर, ये दोनों आपका इनपुट है, ये दोनों ही आप अपने इंडस्ट्रीज में इस चीज को इनपुट करते हो, इस चीज को आप डालते हो, जहां आप लेबर में पैसा खर्चा करते हो, और अपार्ट फ्रॉम दैट कैपिटल पैसा भी लगाते हो। करने का क्या मेन मकसद है? ताकि मुझे अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज मिले फ्रॉम माई प्रोडक्शन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो मेन इंटेंशन है वो ये है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकूं। ठीक है? दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है? अब इसका लॉस क्या है? डिमिनिशिंग रिटर्न, रिटर्न टू स्केल, ये दो लॉ ऑफ प्रोडक्शन है। लिख लो, if you have a pen and paper with me. I don't know whether it is there in your slide or not. दो laws of production है। What are the laws of production? Very important questions that may be going to ask during the time of your examinations. So number one is diminishing return and laws of production, laws of productions में दो चीज इंपॉर्टेंट है, दो लॉ है, एक diminishing return and return to scale. These are the two law of production. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या है?
the more of a variable input, fixed input, the additional output from each unit of variable input will be eventually decrease. जितने भी आप वेरिएबल इनपुट्स डालोगे, फिक्स्ड इनपुट्स डालोगे, उतना ही आपका आउटपुट जो है अच्छा आएगा. अब फिक्स्ड इनपुट क्या है और वेरिएबल इनपुट्स क्या है वो आपको जानना है. फॉर एग्जाम्पल लेबर, cost of raw materials, sorry, not cost of raw material, labor and raw materials, these are the fixed input आप अपने फैक्ट्रीज में लगा रहे हैं. अब बोलोगे सर लेबर फिक्स्ड इनपुट कैसे हो सकता है, लेबर तो चले जाते आ जाते हैं, लेकिन लेबर का जो टैग है वो तो आपको चाहिए ही चाहिए ना. आप एक लेबर अगर रिप्लेसमेंट करना है, सब्स्टिट्यूट दूसरा लेबर तो तैयार है, वहां तो आप सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई काम करवा नहीं सकते हो. आई नीड अ लेबर टू ऑपरेट माई मशीन्स, चाहे वो एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, मुझे वहां पर लेबर चाहिए, इसलिए लेबर वहां पर फिक्स्ड है. दूसरा है योर इनपुट्स, सॉरी योर रॉ मटेरियल्स. जिस चीज का फैक्ट्रीज है आप बना रहे हो, चाहे आप सेप्टिकिन बना रहे हो, लेदर बना रहे हो, कुछ भी प्रोडक्शन आप कर रहे हो, वो भी आपका फिक्स्ड है, उसी का फैक्ट्री है. तो ये दोनों चीज आपका फिक्स्ड है. वेरिएबल्स क्या होता है, आपका रिसोर्स, आपका रिसोर्स एलोकेशन, ये वेरिएबल होता है. कभी ज्यादा पैसा आप लगा देते हो, कभी कम पैसा लगाते हो, इसलिए रिसोर्स एक वेरिएबल ऑप्शन है. क्यों, कभी कम लगता है, कभी ज्यादा लगता है, पहला. दूसरा एक और चीज है आपका एनवायरमेंट, ये भी वेरिएबल है. अगर ऑफ सीजन है तो माल आपका कम बिकेगा, अगर ऑन सीजन है तो माल एट द पॉइंट हाथों हाथ बिक जाएगा. तो समटाइम्स सीजन, क्लाइमेटिक चेंजेस, अपार्ट फ्रॉम दैट रॉ मटेरियल्स जो हम कंप्लीट करके बाहर निकल रहे हैं, मेरे पाइपलाइन पे पूरा रॉ मटेरियल्स अच्छी तरह से बना हुआ है, अब वो कुछ कम सेल होता है मार्केट में हो सकता है कुछ ज्यादा सेल हो रहा है, कुछ कम सेल हो रहा है. एवरी डे इक्विलिब्रियम पोजीशंस में कभी कोई सामान बिकता नहीं है. दैट इज व्हाई दीज आर अंडर वेरिएबल्स इनपुट. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में बताते हैं, जब आप फिक्स्ड इनपुट्स और वेरिएबल इनपुट्स दोनों का एडिशंस करके अपने फैक्ट्रीज में इस्तेमाल करोगे, देन ओनली इवेंचुअली आप देखोगे आपका वेरिएबल्स, आपका जो प्रॉफिट है या तो मैक्सिमम होगा या फिर डिक्रीज होगा. इसीलिए प्रॉफिट को भी वेरिएबल्स बताया गया है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, बिकॉज समटाइम्स यू कैन हैव अ वेरी गुड प्रॉफिट, समटाइम्स यू आर गोइंग टू हैव लेस प्रॉफिट. ओके, you have to face a less profit. That is why eventually profit is also be calculated in variables. This is number one, law of diminishing return. And what is return to scale? How the output change when inputs are increased proportionately. आउटपुट कैसे चेंज होगा जब मैं इनपुट ज्यादा से ज्यादा दे रहा हूं. अब इस चीज को मैं एग्जांपल से समझ जाता हूं. फॉर एग्जांपल कोई एक बिस्किट फैक्ट्री है, रॉ मटेरियल्स वहां पर जितना है उतना ही आप मात्रा में आप हम लोग डालते हैं, कोई कंपनी ओनर डालते हैं, इतना इसका व्हीट, बार्ली, दूध, काजू, किशमिश, जो भी चीनी वगैरह जो भी एक बिस्किट मैन्युफैक्चर के लिए लगता है, मैं उतना ही इनपुट्स देता. अगर आपको आउटपुट इसका ज्यादा चाहिए तब आपको और फ्लेवर्ड ऐड करना पड़ेगा. इफ यू टेस्ट द बिस्किट्स ऑफ ओल्ड कंपनीज, ब्रिटानिया हुआ, ब्रिक्स फार्म हुआ, बहुत सारा सनफीस्ट हुआ, इफ यू टेस्ट द company's biscuit, this company's biscuit, you will see a difference between the biscuits which we are having in our past, the biscuits we are having in our present. If you taste the Horlicks, जब हम Horlicks कंज्यूम करते थे when we are used to be in class 10 और 12, उस समय जो Horlicks का जो कोर्स मटेरियल्स था, इंग्रेडिएंट्स था, वो थोड़ा सा ना उतना बारीक नहीं था. ग्लास में डिसॉल्व होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता था. समटाइम इट गेट्स स्टिक व्हेनेवर वी मिक्स अ हॉट वाटर. आई एम टॉकिंग अबाउट 2010. अभी अगर आप नए हॉर्लिक्स पैकेट
लाइए आप थोड़ा सा डिसॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ये जल्दी से जल्दी मिक्सअप हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जो पाउडर का क्वालिटीज है वो थोड़ा सा और महीन कर दिया गया है, और थोड़ा सा स्मॉल पार्टिकल्स में उसको कट किया जा रहा है। पहले कोर्स मटेरियल ज्यादा था, ज्यादा से ज्यादा कोर्स मटेरियल, अब जब खाते थे कभी कभी मुंह में चबाना पड़ता, लेकिन अभी चेंज हो गया। तो रिटर्न टू स्किल का मतलब हो गया, आप जितने ज्यादा इनपुट्स आप अपने प्रोडक्ट्स में डालोगे उतना ही उसका आउटपुट प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगा। द मोर यू एड टेस्ट टू योर इनपुट्स, द मोर यू विल गोइंग टू हैव गुड टेस्ट व्हाइल इट कम्स आउट। दिस इज द लॉज ऑफ, जितना गुड़ उतना मीठा। एक कहावत है ना, जितना चीनी उतना मीठा, या जितना गुड़ उतना मीठा। आप चाय पत्ती चाय बना रहे हो, जितना चीनी डालोगे उतना ही आपका आउटकम मीठा आएगा, जितना नमक डालोगे उतना ही आपका आउटकम नमकीन आएगा। तो दिस इज कॉल्ड द लॉज ऑफ प्रोडक्शन। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? एनी डाउट? यही सब चीजें यहां पर लिखा हुआ है by the renowned authors. If you go through this, you can find it out that these all are the things mentioned here. अब करते हैं theory of cost. Am I audible to all of you? Yes, sir. So one question here, sir. Last. So law of diminishing return आपने जो बोला उसमें you told that resources are the variable, right? So if I consider in my case, like I am into IT industry और हम लोग में as a team lead I create a team जिसको एक software बनाना होता है. So we don't have any raw material over here. We just need resource as the main equipment, I would say, जो आपका वो software बनाता है. So हम लोग in this scenario can we consider the resource as a fixed instead of variable, or it is like industry perspective same ही रहता है? To your questions, आप कैसे कह सकते हो कि आपका रिसोर्सेस कुछ नहीं है? रिसोर्स का मतलब पैसा नहीं है, रॉ मटेरियल्स आपका, आपको जो ये कुछ एप्स बनाने के लिए जो आपको मिलता है, आपको जो ये मिलता है, मुझे अपने एप्स में ये चाहिए, मुझे अपने एप्स में ये चाहिए, तो ये तो आपका रॉ मटेरियल्स आप काउंट कर सकते हो ना इस चीज को। आप लोग क्या बनाते हो? एआई बनाते हो ना, मतलब कुछ भी एप्स इज अ डिफरेंट थिंग। मैं जैसे हो गया फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग यू माय लेटेस्ट प्रोडक्ट एग्जांपल। तो हम लोग जैसे एक बैंक, हम लोग एक क्लाइंट है जिसका हम लोग पेमेंट गेटवे ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। सो वी आर ट्राइंग टू मॉडिफाई सम स्ट्रीमलाइन ओवर देयर, वो पाथवे में कुछ चेंज कर रहे, सो देयर इज समथिंग लाइक क्रिएटिंग अ मीडियम, यू कैन जस्ट टेकिंग दैट। जब भी आप उस चीज को बनाते हो तब आप किसी सीनियर को दिखाते हो ना, वो चीज बैंकर्स को दिखाते हो ना, सर आपने जैसे कहा था, मैंने ये मॉडल आपको तैयार करके दिया है, देख लीजिए, इसको रन करके देख लीजिए, एज पर योर चॉइस वेदर इट इज रनिंग और नॉट, बताते हो ना। हाँ सर, वो स्टेजेस में रहता है, बिकॉज वो वैलिडेशन स्टेज में आपका एजाइल जैसा हम फॉलो करते हैं, तो हर एक स्टेज में चेकिंग पे रहता है, चेकिंग रहता है। तो वहां पर आपका सीनियर्स हुआ या बैंकर्स हुआ, जो भी है जो आपको दिया है ये काम करने के लिए, वहां पर बोलते हैं ना, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफिकेशन चाहिए, मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा और अपग्रेड होना चाहिए, ये है ना। तो हम इस चीज को क्यों नहीं, हम इसको चीज को रॉ मटेरियल्स क्यों नहीं मांगते? वो चाहता है इस चीज को और रॉ मटेरियल्स हम ऐड करें, हम इसमें ये और रॉ मटेरियल्स ऐड करें, हम जितना गुड़ इसमें, हम इसमें ये और गुड़ डालना चाहते हैं, ताकि इस चीज का ये जो आप बना रहे हो इसका थोड़ा सा मिठास और बढ़ जाए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए आप, थोड़ा सा मैंने कहा ना नीलांजन, थोड़ा सा अलग समझो, ये आपका रॉ मटेरियल्स है, तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर कंपनी आपको पेमेंट कर रहा है, क्या वो फिक्स्ड है? आपका टीम लीडर तक बोलेगा ना, सर अगर आप ये चीज ऐड करना चाहते हो आपके गेटवे पेमेंट्स व्हाटएवर यू आर डूइंग, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉस्टिंग प्रोडक्शन ज्यादा आएगा, पता है ना, आता है। तो ये अलग होता है, जैसे यहाँ पे बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट R&D टीम एक बजट दे देता है, जो हम लोग मतलब वेरीफाई करते हैं कि इतने बजट होगा, तो उसको हम लोग जब साइन करते हैं तो उतने बजट नहीं होता है, बट एट द एंड अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा कुछ रिक्वायरमेंट हो रहा है, दैट टाइम हम लोग चेंज ऑर्डर रेज करके वी इंक्रीज द बजट, सो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। तो दैट इज डिफरेंट सिनेरियो मींस यू कैन कैलकुलेट जो भी एसेट आपका दिया जा रहा है या फिर जो भी रिसोर्सेस आपको हो रहा है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो वेरिएबल्स उसमें हो रहा है। जब भी आप वहां पर कुछ मॉडिफिकेशंस करते हो तो आप अपने से बिल ऐड करके दे देते हो ना, सर यहाँ पर हमने कुछ चेंजेस किया है, तो आपने जो पहले एस्टिमेशन करके हमने बजट दिया है अब थोड़ा सा बढ़ गया है सर, मुझे लगता है थोड़ा सा और हमको इंक्रीज करके पेमेंट होना चाहिए। तो ये जो फिक्स्ड एसेट आपको पहले बजट तैयार करके दिया है, तो ये तो वेरिएबल हो गया ना एट द एंड, वो है ना। आप सोच के देखिए ना थोड़ा सा,
वो है ना। तो हम यहाँ पर अपना एसेट को तो वेरिएबल्स ही मानेंगे ना। According to your questions, if I going to ask you the question, according to your questions, the asset is sometimes get variables. Obviously ना, आपके बजट आपको तैयार कर दे रहे। एक मिस्त्री को आप, चलिए मिस्त्री वाला बात अलग होगा। आपने कहा मुझे थोड़ा सा ये बनाना है, बैंकर्स के साथ हमारा टाई अप है, अकॉर्ड है, हम वो भी सॉफ्टवेयर उनके लिए बनाते हैं। आप लोग सॉफ्टवेयर ही बनाते हो ना? हाँ सर। आप लोग सॉफ्टवेयर बनाते हो, ठीक है। तो आप लोग जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द बैंकर्स एंड ऑल, तो बैंकर का जो बैंकर्स में जो भी है, जो सॉफ्टवेयर के बारे में इनको जिनको नॉलेज है, वो आपसे फिर डिस्कशंस में आता है ना आपके सीनियर्स के साथ, सर मुझे यहाँ थोड़ा सा ये मॉडिफिकेशन चाहिए। मुझे लगता है जब कार्ड पंच हो तुरंत उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्ले हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू सर, जब भी कस्टमर्स कुछ कार्ड पंच करे तो तुरंत उसको स्क्रीन में ये शो होना चाहिए। थोड़ा सा लैंग्वेज में वेरिएबल्स होना चाहिए। सर बहुत जगह इंग्लिश पढ़ नहीं पाता, वहां थोड़ा सा मुझे हिंदी का मॉडिफिकेशन चाहिए। ऐसा आपसे पूछा जाता है कि नहीं, पहले बताइए। हाँ सर, वो तो प्रोटोटाइप भी हम लोग क्रिएट करते तभी टेस्टिंग स्टेज में सब आते हैं। टेस्टिंग चेंज, अगर आप वहां कुछ नया ऐड करने के लिए आपसे कहा है, आई एम नॉट टेकिंग इट, आप जब नया ऐड करने के लिए आपसे कहा जाता है फॉर योर प्रोडक्ट, आपको एग्जांपल में नहीं आ रहा, आपके लिए कुछ नया ऐड करना चाहता है, सर ये ऐड कर दीजिए प्लीज, सर ये थोड़ा सा अच्छा नहीं, या थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिए, तो आपका बजट तो बढ़ जाता है ना फिर, या फिर बजट बढ़ा के आप देते हो। तो फिर वेरिएबल्स क्यों नहीं हो रहा है? वेरिएबल्स तो हो रहा है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन था, आपने बोला रिसोर्सेज आर वेरिएबल्स, आई एम सेइंग इन दिस सिनेरियो आई कैन कंसीडर रिसोर्स एज फिक्स्ड आल्सो, क्योंकि रिसोर्स तो चाहिए ही चाहिए, एंड कुछ मामले में फिक्स्ड रिसोर्स चाहिए, लाइक हु विल बी डिजाइनिंग द एपीआई, हु विल डू द यूआईएक्स डिजाइनिंग, तो वो तो एक फिक्स्ड रिसोर्स लग रहा है मुझे, तो वहां पे फिर वेरिएबल रिसोर्स नहीं हो रहा है, मैं वो कहना चाह रहा था। अगर देखिए, मैं आपको, आप सही बोल रहे हैं, हो सकता है आपका फिक्स्ड रिसोर्सेस या फिक्स्ड रिसोर्स आपको दिया जा रहा है, लेकिन ये प्रोडक्शन खत्म होने के बाद सपोज आप दूसरा कोई क्लाइंट के साथ कुछ टाई अप करके ले रहे हो, तो वही आपका फिक्स्ड रहेगा क्या? वही जो है में आपका वही तो डिपेंडेंसी रहता है, लाइक उस प्रोजेक्ट में जो रिसोर्स लगेगा मुझे वैसा ऐड करना पड़ेगा। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आपका वो रिसोर्सेस अलग हो जा रहा है। रिसोर्सेस तो इसलिए मैंने वेरिएबल्स कहा यहाँ पर रिसोर्सेस को, तो एक ही जगह एक ही रिसोर्स आप हर जगह हर पेमेंट मतलब आप एक प्रोजेक्ट का नहीं, मल्टीपल प्रोजेक्ट सिनेरियो को कैप्चर करो। यस देन इट्स फाइन। इसीलिए मैंने कहा कि रिसोर्स यहाँ पर वेरिएबल्स होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कहां पर मैं फिक्स्ड बताऊंगा, देखिए सपोज फर्ज करो कि 1 साल से आपका कोई घर बन रहा है, आपका कुछ बिल्डिंग्स प्लान हो रहा है, तो उसका जो आपका जो मिस्त्री है, आपका जो मिस्त्री लगाया है, आपको जो लेबर्स वहां पर लगाए हो, चाहे लेबर्स का 2 कैटेगरीज होता है, एक हायर जो मिस्त्री होता है, एक लोअर मिस्त्री होता है, जो रेडी सीमेंट बाली ईटा ये सब ढो के देगा, और तो उनका चार्जेस आपका फिक्स्ड है। आपका 1 साल 2 साल तक घर बनेगा ना, तो वही बनेगा। नेक्स्ट अगर वो दूसरा प्रोजेक्ट में भी जाएगा ना, वो तुरंत वही फिक्स्ड रेट आपको बताएगा, सर मेरा 500 रुपया, मेरा लेबर का 300 रुपया आप दे दीजिए। हाँ, उसका लेबर, उसका रिसोर्सेस वेरिएबल्स कहां पर होगा, जब वो कोई आउट स्टेशन जाके वो काम करे, तब जाके वहां पर रिसोर्सेस का कुछ वेरिएबल्स आ जाएगा। सर मेरा यहाँ से आने तक का खर्चा मेरा बढ़ जाएगा, सर मुझे रिसोर्सेस ये चाहिए, तब मैं बनाऊंगा। इस पर थोड़ा सा टैली करके देखिए, आप एक प्रोजेक्ट के लिए फिक्स्ड ले रहे हो, कोई बात नहीं, मैंने अलग से भी कहा आप थोड़ा सा इस चीज का ना जानकारी अपने सीनियर से लीजिए, हो सकता है। मैंने ये चीज देखा है कि क्लाइंट्स ने इस तरह का डिमांड्स किए हैं कि सर मैंने यहाँ कुछ चेंजेस किया है, मॉडिफिकेशंस किया है, मेरा कुछ नया टीम इसमें लगा ज्वाइन हुआ है, तो मुझे लगता है कि आपने जो मुझे पेमेंट किया है इसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन करके मुझे थोड़ा सा दे दीजिए। इट्स अ रिक्वेस्ट मोड, आप दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। अगर वो मान जाते हैं, मैक्सिमम बैंकर्स मान जाते हैं, तो क्या होता है, आपका जो फिक्स्ड बजट था उसमें जब एड ऑन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका जो रिसोर्स है वो फिर वेरिएबल्स हो जा रहा है ना। हो सकता है पिछले नेक्स्ट बजट जो आपका जाए वो कम हो जाए, आगे वाला जो बजट हो जाएगा वो फिर ज्यादा बढ़ जाए, तो यहाँ फिक्स्ड आपका नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने रिसोर्स को यहाँ पर वेरिएबल्स में डाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? करेक्ट। ओके मैम, नेक्स्ट स्लाइड। इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो थ्योरी ऑफ कॉस्ट मैंने अच्छा थ्योरी ऑफ कॉस्ट मैंने नहीं बताया है मैम, दोनों चीज यहाँ पर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट। Analyzing the expense a firm incur to produce given level of cost. There are 2 types of cost is there. What is fixed cost and what is variable cost? The cost which do not change with the level of output, such as rent, such as house rent,
office rent. These are the fixed cost. This cannot be, do not change. Certainly this do not change with the level of output. लेवल आउटपुट हम हिसाब कैसे करें? आपके 2 महीना रहेगा, आप इस महीने का भाड़ा मुझे दे दीजिएगा ज्यादा. Yeah, voice is breaking. ओके, वो सब देख रहा है. अब फिर उठना पड़ेगा शेयर से, घूम पड़ाना पड़ेगा. देखिए अभी आ रहा है. हाँ, तो यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहते हैं? देखो यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है, द कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट सच एज रेंट. अब रेंट का एग्जांपल मैंने दिया क्यों है? अब कोई रेंटल एग्रीमेंट्स हुआ है, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट्स आप रह रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक, वेरी गुड, फाइन. अब आपका कुछ मेहमान गेस्ट आया है, 1 महीना हो गया रह रहा है, तो क्या आपसे रेंटल ये सवाल करेगा, सर इस बार रेंट का भाड़ा मुझे आप ज्यादा दीजिए क्योंकि 2 एक्स्ट्रा गेस्ट आ गया है? तो फिक्स्ड इनकम या फिक्स्ड कॉस्ट उसे कहते हैं जहां इनपुट आप जो भी दे रहे हो उसका आउटपुट अगर सिमिलर रहता है, इक्विलिब्रियम पोजीशंस में रहता है, उसका कोई चेंज नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हेलो, एम आई ऑडिबल? जल्दी बोलो फटाफट. हेलो, हाँ, am I yes, sir. audible? Yes, sir. Then the next is variable cost. Cost that change directly with the level of output. जैसा ही आप आउटपुट, नीलांजन का क्वेश्चंस बहुत जबरदस्त था. नीलांजन ने बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस पूछा था. अकॉर्डिंग टू हिज क्वेश्चंस ये उस तरह का है. वेरिएबल कॉस्ट, आप जितना आउटपुट दे रहे हो, जितना आउटपुट आपका निकल रहा है, अच्छा निकल रहा है, उतना ही आपका कॉस्ट बढ़ जा रहा है. सच एज रॉ मटेरियल्स, सच एज एक्स्ट्रा एड-ऑन्स टू सम थिंग्स, जहां आपका आउटपुट ज्यादा निकल रहा है. ठीक है, एग्जांपल्स दे देते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो. किसी ने अच्छा चलो, कोई एक प्लेस है जहां पर जितनी ज्यादा शक्कर दिया जाएगा उतना ही आपका 1 रुपया चार्जेस किया जाता है. आई फॉरगॉट द प्लेस ऑफ अ नेम. वहां बनमस्का और चाय वेरी फेमस है. अगर वहां चाय की चीनी की चम्मच काउंटिंग वाइज होता है, मीन्स 2 चम्मच चीनी मीन्स एक्स्ट्रा 2 रुपीज यू नीड टू पुट ऑन दैट. ओके, तो दिस टाइप ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट. एक जगह है जहां पर ये चीजें होता है. उनका कहा जाता है कि उनका शुगर जो है बहुत रिफाइन होता है, कोई हेल्थ में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वगैरह वगैरह. ये जबरदस्त वीडियोस है. शायद परेल या पुणे एरियाज में कुछ ऐसा शॉप है, बहुत वायरल है वो, आप देख लीजिएगा. वहां पर जो शुगर ऐड करते हैं मालिक चाय बनाने के टाइम में, वो एक्स्ट्रा स्पून अगर आप डालोगे तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल एक और जगह है जहां पर आप अगर कचौड़ी खाओ, उसके साथ अगर एक्स्ट्रा एक बार सब्जी देगा, इफ यू आस्क फॉर अनदर वन मोर सब्जी, अनदर सब्जी, क्वांटिटी ऑफ सब्जी, देन दे विल गोइंग टू ऐड. इस तरह का होता है. तो जितना ज्यादा एड ऑन्स आप करोगे या जितना ज्यादा रॉ मटेरियल्स आप दोगे, आपका बजट बढ़ता जाएगा. बजट जब बढ़ेगा तो आप अपना जो मेन है उनसे कहिएगा, सर मेरा बजट बढ़ गया है, मुझे जो पेमेंट करना है वो बढ़ा के दीजिएगा. तो जहां पर कॉस्ट अनइवन रहता है, समटाइम्स अप समटाइम डाउन, दिस टाइप ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. Sir, नाउ hello. सर एक और क्वेश्चन. सर ये सर लाइक एज अ मैनेजर अगर मैं सोचूं, सो देयर कैन बी सिचुएशन जहाँ पे क्लाइंट हैज आस्क्ड फॉर सम चेंजेस, ओके, बट ही डोंट वांट टू एक्सीड द बजट, बट ही वांट दैट चेंजेस विद इन दैट पर्टिकुलर बजट. सो उस समय पे अगर मान लीजिए क्लाइंट कन्विंस नहीं हो रहा है, तो क्या हम लोग डायरेक्ट उसको ड्रॉप कर दो? इज देयर एनी अदर वे अराउंड व्हिच वी कैन थिंक ऑफ? You want to solve your problems with asking this type of questions? This is the real world scenario, like manager faces this. That's I why. understood. I understood this. Okay. There are the 2 important things you need to do. First of all, if the client is old, if the client has a good relationship with you, and if the client is working for near about 5 to 10 years, they have a collab with your companies for maximum years, then you can reduce sometimes. You can reduce. You can keep his respect. That's okay, sir. If you want to add on something on your projects and all, okay, fine. If you want this within this budget, okay, I agree. But लेकिन अगर ऐसा दिख रहा है कि आपका क्लाइंट्स बहुत नया है
बार्गेनिंग बहुत ज्यादा कर रहा है कि नहीं सर हम नहीं मानेंगे। आप कंपनीज के आपका जो कंपनी, आप तो चाहोगे नहीं मेरा लॉस हो, लेकिन आप कुछ हद तक बार्गेनिंग कीजिए, आप कुछ हद तक बार्गेन कीजिए, सर दिस इज द प्रॉब्लम वी आर हैविंग, अगर आप इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चेंजेस चाहते हो और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा बजट फ्रेंडली, बजट पॉकेट से ज्यादा आ जाएगा सर, तो आप एक काम कीजिए सर, ये थोड़ा सा नेगोशिएशंस में आ जाते हैं, थोड़ा सा पोलाइट वे रिक्वेस्ट मोड में आप जा सकते हो एज अ मैनेजर। फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट, अगर फिर भी वो रिजिड है, दे डजंट वांट, नहीं हम एक चवन्नी भी इसमें ऐड नहीं करेंगे, सॉरी मेरे लिए दूसरा कोई क्लाइंट आप देखिए, ड्रॉप कर दीजिए, ओके सर थैंक यू, बट इन अ वेरी पोलाइट वे। अगर आप नेगोशिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द मैनेजर, नेगोशिएशन अलग पेपर है, चैप्टर है, कैसे नेगोशिएट करना चाहिए, अगर वेरी पोलाइटली आप आंसर दे रहे हो लेकिन आपका जो कस्टमर्स है वो वेरी रिजिड वे में आंसर दे रहा है और चाह नहीं रहा है, आप चाह रहे हैं कि आप ही कॉम्प्रोमाइज करिए, वो कॉम्प्रोमाइज करने में तैयार नहीं है, प्लीज स्विच ऑफ द फोन, सॉरी स्विच ऑफ द साउंड एंड ऑल, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब। अगर वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ एक तरफा आप भी कुछ प्रपोजल ला रहे हो, वो मान नहीं रहा है, सिर्फ आप ही को मनाने के लिए लगा हुआ है, इस तरह का क्लाइंट से थोड़ा बच के रहना मुझे लगता है अच्छा है। इन आने वाले समय में हो सकता है वो ये सोचे कि मैंने अगर इसे सबड्यू करवा दिया, मैंने इसे मनवा लिया, आगे भी आपको और कम में मनवाने की कोशिश करेगा, तो आपके लिए दिक्कतें हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का प्रपोजल से आप थोड़ा सा ड्रॉप कर लेना मुझे लगता है अच्छा है फॉर द मैनेजर्स, ओके। लेकिन हाँ इन अ वेरी पोलाइट वे, ताकि उनको नहीं लगे कि मुझे वो डिसरेस्पेक्ट कर, आफ्टर ऑल कोई भी नहीं चाहेगा मैनेजर्स कि मेरे अंडर जो भी कस्टमर्स है या मेरे अंडर जितने भी क्लाइंट्स है वो मुझे छोड़ के ना चला जाए, क्योंकि ये कंपनी का रेपुटेशन की बात है। लेकिन अगर वो रिजिड है, अपने ही बात मनवाने के लिए है, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तरफ नहीं है, नेगोशिएशंस दोनों के बीच में होता है, अगर वो करना नहीं चाहता है तब आप थोड़ा सा उस चीज को ड्रॉप कर सकते हो, प्लान को। क्या ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? नहीं सर, मैनेजर लेवल तक तो इशू नहीं हुआ, बट सिंस सिचुएशन लाइक दिस वी हैव बीन, तो उसका सोल्यूशन हम लोग कुछ और लेते थे, लाइक इन दैट केस लाइक हम लोग थोड़ा रिसोर्स काउंट, हायर कॉस्ट रिसोर्स को रिमूव करने का सोचते थे, एंड रादर वी यूज्ड टू ऐड लोअर कॉस्ट रिसोर्स to get the work, that particular work done. क्योंकि budget, we can't drop that client because that's client हम लोग यहाँ पे एक कंपनी होता है, so एक कंपनी को ड्रॉप करेंगे तो फ्यूचर रेवेन्यू विल बी अ बिग इम्पैक्ट। so वो तो हो जाएगा, हम लोग वही रिसोर्स को ही थोड़ा ऊपर नीचे करके देखते हैं, एंड ओवर टाइम समथिंग व्हिच वी प्लान। इसका मतलब है कि जो भी आपका क्लाइंट्स है वो नेगोशिएशंस के लिए तैयार है, नेगोशिएशंस आपसे करता है, ऐसा कोई कंपनी है जो रिजिड है एकदम, नहीं हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ऐसा कोई है? एक्चुअली सर यहाँ पे बजट चेंज इज अ बिग थिंग, क्योंकि फाइनेंस टीम अप्रूवल नहीं देते एट द एंड। अगर क्लाइंट के एक फिक्स पैसा होता है, दे लाइक स्पेंड बिलियंस ऑन दैट, उसके बाद दे आर नॉट गोइंग टू ऐड अ सिंगल पेनी, बिकॉज दे विल पे कि हम लोग पहले ही तो आपसे बजट मांग लिए थे। सो दैट टाइम लाइक वी हैव टू फिक्स इट इंटरनली, because we can't lose the client, because एक client 10-12 साल चलता है एक प्रोजेक्ट, so in that way तब तो ठीक ही है, तब आपको उसी तरह से डील करना पड़ेगा, यू नो टू डील इन दैट वे ओनली, क्लाइंट को आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है जो कस्टमर एकदम रिजिड है एकदम और कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, तो अगर 10-12 साल like we have to take a hard step, that's why मैंने वो पूछा था कि इन फ्यूचर अगर ऐसा बारे मुझे मिलता है तो कैसे। तो अब हम एक यहाँ भी एक और चीज है कि अगर इस तरह का कस्टमर दोबारा, क्लाइंट आपके पास दोबारा आता है, आप थोड़ा सा बजट बढ़ा के बोलिए, ताकि वो जब लास्ट एंड पोजीशंस में आ जाए तो वो मेकअप हो जाए। बहुत सारा वेज है ना, बहुत सारा वे है। अगर दिख रहा है आपको इस तरह का कस्टमर मेरे पास दोबारा आ रहा है, आपका परफॉर्मेंस देख के वो सेटिस्फाइड है, आपका जॉब देख के वो सेटिस्फाइड है, आपका वर्क देख के वो सेटिस्फाइड है, दोबारा आना की कोशिश करें, थोड़ा सा बजट बढ़ा के बोले। क्या वो हम टैली करते हैं एक दूसरे कंपनी के साथ, यहाँ कितना है वहां कितना है? डेफिनेटली करते हैं। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ, मैं मेरे प्रीवियस कंपनी में मेरा क्लाइंट था गूगल, तो उन लोग का पार्टनरशिप 30 साल से चल रहा है। सो इस सिचुएशन में टैली उतना होता नहीं है, बट हाँ अगर इफ लाइक द इशू इज लॉन्ग टर्म कि उनको हमेशा बजट का इशू हो रहा है एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, तो ऑब्वियसली टैली करेगा एंड दे माइट कैंसिल द डील। तो ऐसा सिचुएशन भी होता है, बट बड़े क्लाइंट के साथ कम होता है, छोटे क्लाइंट के साथ बहुत ऐसा हुआ है, सीन सम सिनेरियोज। तो दे विल मूव टू सम डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी लाइक इन्फोसिस है, और भी इतने सारे कंपनीज है, उनके पास चला जाएगा। तो इट्स डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ द कस्टमर्स, इट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ द कंपनीज। छोटा मोटा है तो हाउ द सिचुएशन इज गेटिंग डील, बिकॉज डिप्लोमेटिकली हमें सोचना पड़ता है। तो
तो वही फिर आपको कट शॉर्ट करना पड़ेगा, और तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर हाँ एक उपाय है कि अगर आप देख रहे हो कि दोबारा ये आ रहा है थोड़ा सा, तो आप इस चीज को तो मैं पहले से बजट बढ़ा करना के आप बोल सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज वन। अनदर वन इज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। व्हाट इज दिस? द डिक्रीज एज मोर यूनिट आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट इज स्प्रेड ओवर अ लार्जर क्वालिटी। ओके, दैट इज कॉल्ड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अभी जो फिर भी जो नीलांजन ने अभी सवाल किया है उसी के बेस पे इसका जवाब है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। जब आप देख रहे हो कि क्लाइंट इज मोर रिजिड, he doesn't want to change anything, he doesn't want to give anything, but he wants to add on thing, तो आपको ही अपना इनपुट्स डिक्रीज करके उनको आउटपुट देना पड़ेगा। तो डिक्रीजिंग इन इनपुट एंड गिविंग द आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ये फिर दोबारा निरंजन का ही है क्वेश्चन, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट। समझ में आ गया? दीज आर द टोटल टाइप ऑफ कॉस्ट आर देयर। नंबर वन इज फिक्स्ड कॉस्ट, नंबर टू इज वेरिएबल कॉस्ट, एंड द थर्ड वन इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। वर्ड एवरेज भी लिख रहा है, ऊपर से फिक्स्ड भी दे रहा है। सोचो कितना है, इकोनॉमिक क्या, इसलिए साइंस का आ गया। एवरेज भी लिखा है, ऊपर से फिक्स्ड भी लिखा है। सोच रहे हो? ओके, input output relationship of production functions. Okay, the mathematical calculations are there. The input for any product or services are land, labor, capital, organizations and technology. These are all the inputs. The other hand, the productions here, the function of these 5 variable inputs, mathematically this is expressed as Q, okay, equals to F, first bracket open, L1, L2, C, O, T, bracket closed. Okay, where Q is a quantity of production, F explain the function, that is the type of relation between input and output, L1, L2, C, O and T refers to land, labor, capital, organizations and technology respectively. These inputs have been taken in conventional terms. In reality, material also can be included in a set of inputs. Okay, so this is the calculative mathematical calculations through which you can find it out, the relationship between input and output of any product. Okay, through these calculations. यहाँ एग्जाम्पल तो कुछ दिया नहीं है, समझाने का कुछ लग नहीं रहा है, कुछ है, आप चीज को समझ लीजिए। मैंने जो अभी कॉस्ट प्रोडक्शन थ्योरी, लॉस प्रोडक्शन पढ़ाया था उसी के रिलेटेड है। किसे इनपुट कहते हैं, किसे आउटपुट कहते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। दिस द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, दिस कैन बी एक्सप्रेस थ्रू दिस। ओके, क्लियर है? हाँ सर। यहाँ कुछ समझाने लायक नहीं है। मैम प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। Production function with one variable inputs and laws of return. ये एक और laws of return है। What is called law of return? ये another important part है। What is law of return? Can you, anyone? Law of production हो गया, law of demand हो गया। What is law of return? No idea. idea sir. In economics, law of returns means it describes how the output changes when all inputs are increased proportionally for a long run. फिर से रिपीट करता हूं, लॉ ऑफ रिटर्न मीन्स जब हम ज्यादा से ज्यादा इनपुट हमारा इंक्रीज हो जाता है एंड हाउ आउटपुट चेंज, तब आउटपुट क्या चेंज आता है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिटर्न। जैसे हम एग्जाम्पल, हम जितना प्रैक्टिस करेंगे या हम जितना पढ़ाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ, हम जितना मेहनत करेंगे हमारा रिजल्ट उतना ही फ्रूटफुल होगा। सचिन एक बार एक कोट्स में कहा था, द मोर यू प्रैक्टिस इन द नेट, the more you will find easier in the main. What does it mean? आप जितना ज्यादा मेहनत पसीना नेट्स में बहाओगे उतना ही कम मेहनत आपको ओरिजिनल गेम में करना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ रिटर्न। ये विधान तो भगवान ने ही बना दिया, जितना मेहनत
जितना ज्यादा इनपुट्स आप डालिएगा किसी भी काम के लिए, उतना ही आपको आउटपुट देखने को मिलेगा. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिटर्न, है ना. जो कहते हैं ना, एक गाना भी ना, गरीब को 1 रुपया दोगे आपको भगवान 100 रुपया देगा. दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ रिटर्न. बेसिकली दिस, मैंने एग्जाम्पल दिया ये सब एग्जाम्पल याद रखने के लिए. दिस 3 आउटकम इंक्रीजिंग इन कांस्टेंट डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. ठीक है. अब चलिए, ये तो लॉ ऑफ रिटर्न बता दिया. एक और लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ प्रोपोर्शंस. व्हाट इज दिस लॉ ऑफ प्रोपोर्शंस? द मोर यूनिट ऑफ इनपुट्स are added to fixed input, the more will increase and eventually it will increase in the proportion. जैसे आप फिक्स्ड इनपुट, आपका सपोज करो लैंड है, अब इस फिक्स्ड इनपुट में आप कुछ कंस्ट्रक्शन चाहते हो विद एडेड टाइम, then you have to add more and more labor. So finally what will happen according to the law of proportion? It will going to increase in 2x. आप जो कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, अगर वही प्रोपोर्शन में, वही रेट में दुगना करना चाहते हो, तो आपको उसमें इनपुट ज्यादा डालना पड़ेगा. What will happen? It will going to give you in multiplied way. That is called law of proportions. But then it will be stabilized for some time and then the output will be negative now. मैं आपके पॉइंट्स पे आ रहा हूं. मैंने एक पार्ट बताया. But when in a fixed inputs you are adding little outputs, then what will happen? This will going to eventually decline and it will be count as a diminishing law proportions. आपकी बात में आ जाते हैं हमेशा, इट विल बी रिटर्न टू नेगेटिव. तो लॉस हमेशा दो वे में होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव में होता है. ठीक है. आपके पॉइंट में आपने कहा ना नेगेटिव, यहां नेगेटिव. अगर मैंने अपना इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट रिसोर्सेस नहीं लगाया, तो व्हाट विल हैपन? इट विल डिक्लाइन एंड इट विल गोइंग टू रन इन अ डिमिनिशिंग रेट्स. दैट इज द अनदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोपोर्शंस. दोनों लॉ आ सकता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोपोर्शंस. पहले जो मैंने बताया आपको, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. अब आपके वाला जो सवाल है, दैट कम्स अंडर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोपोर्शंस. अब समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, ठीक है. I have a class at 2 p.m. So let us conclude the session here. Whatever the doubts, do you have any doubts right now?